सो क्या लगता है पेरेंट्स को कहाँ से इसकी शुरुआत करनी चाहिए, कौन सी क्लास से, किस उम्र में? वो कहते हैं ना कि सही दिशा सही उम्र में मिल जाए तो कहीं ना कहीं अच्छे लेवल तक बच्चा जा सकता है। मैं समझता हूँ कि एज लॉन्ग एज बच्चों की मैच्योरिटी क्लास के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, बच्चे की मैच्योरिटी बड़ी इंडिविजुअल और सब्जेक्टिव होती है। तो कोई बच्चा 6 क्लास में भी ऐसा होता है जो 8th क्लास की मैच्योरिटी रखता है। तो हमें एज ए पेरेंट्स ये देखना चाहिए कि हमारा बच्चा एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है, वो इंटरेस्ट कहाँ ले रहा है। और इंटरेस्ट नॉट ओनली कि वो किसी एक सब्जेक्ट में ले रहा है या वो किसी खेल में ले रहा है या वो इवन टीवी के वीडियो गेम में ले रहा है। देखो, हम एक बात कहते हैं, हमारे प्रोफेशन में एक चीज़ है कि वाई ऑक्सफोर्ड इज ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हमेशा हमारे मुंह पे आती हैं कि ये क्यों आती हैं। कैम्ब्रिज है, स्टैनफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड है, येल है। रीज़न वॉल नहीं है, दीवारें नहीं है, अच्छी बिल्डिंग नहीं है। होता क्या है कि वहाँ के टीचर कैसे, वहाँ के बच्चे कैसे, वहाँ जो टीचिंग में डिलीवरी है, जो पढ़ाया जा रहा है, वो क्या पढ़ाया जा रहा है। As I told you, the things will not go according to you. My mother got severely ill. She got hepatic renal failure, and 1.5 months I just graduated, and I spent 1.5 months in hospital taking care of her. She went in a coma. It was very exhausting for me to spend 24 hours with mother. But when I spent almost 3 weeks with her in ICU, I used to see the daily people, how many people lose their life. And somewhere it hit my heart that I have to really think seriously, not because of career only, not because of money only. We have to come ground as a humanitarian criteria. Who is inspiring the situation? I will tell the situation. Situation means I have gone through the rigorous corporate sector, okay, where I used to be involved in several, as a HOD, the people management is very difficult, and when I thought that just because of out of 70 employees, there are 3 elements always disturbing my personal life. I asked HR, I don't want to be comorbid at the end of age. I am in a good position in a career stability and financial stability. Please leave me. I want to die healthy. So I choose my quality of life rather than fund or money. Okay. For your information, I left 2 CR job with my wife from the previous organization, which is dream in India to get anywhere. Okay. It was very challenging. Become a researcher or a scientist? You must be thoughtful. My marks was poor because I was doubting on Archimedes' rule also. I was doubting on Newton's rule also. My father was very angry sometimes that what is the problem to remember these 3 steps. Because when I used to read the book, I always having a question. When my father was teaching in a house that proton having a positive charge, electron having a negative charge, at that time I was thinking what is the age of the proton and neutron and electron. Something different which is not written in the book. I was thinking that oxygen is only 21%, nitrogen is something this percent. Then why the reaction I always learned that we take oxygen and liberate CO2, where is the nitrogen? So such questions always pop up in my mind that from the 9th standard, 8th standard, and I really was familiar that marks I cannot get good. But it was very which you have heard about, and I need 5 success mantras. Yeah, tell me, should I throw popcorns or are you ready? Yes, Vijay. Ma'am, give my please. I got to know that we should never give up in any situation. We should keep trying, even if we are feeling low. We should keep trying. We should never be demotivated. So which is that nerve we have activated today? Nerve of perseverance. That is never giving up. Right? Thank you so much. Well done. Aradhya, who wants to speak? Another success mantra which we have got, very important, is surrender. When the parent goes to Ma'am, the mantra we got was never give up. We should have
yourself, not for showing others that we are good. Yes. And one more thing which you are missing. Yes, Mr. Focus on your goals. Focus on your goals. Focus on your goal. You have 100% focus and consistency. Not only focus. The keyword is persistence. The keyword is consistency. Consistency is more important than your hard work, isn't it? Yes, Kashmi. Ma'am, give mic to Kashmi and then you. Ma'am, sometimes what do we think that doesn't happen? Yes, that was an important lesson which sir has taught us. So, I mean, whatever you are thinking that I will become a doctor, I will become this and this, that will not happen maybe, right? Many other, routes will be coming to your path. In that sense, in that way, perseverance is the keyword. You don't have to, give up. So, do you know my journey, all of you? हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता होगा कि ओडियम इंटरनेशनल स्कूल महेंद्रगढ़ के अंदर एक कार्यक्रम चल रहा है और बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो अभी बच्चों से बातचीत करके आए हैं और इनसे इनका परिचय जानेंगे। सर, अपना परिचय करवाएं। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर रोहित कुमार वर्मा। मैं एक्चुअली ओडियम इंटरनेशनल स्कूल में एक लीप सीरीज़ होती है जिसमें बेसिकली बच्चों को ये बताया जाता है अपनी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कॉल किए जाते हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स जो हैं वो लर्न करते हैं उनसे कि उन्होंने अपनी जर्नी कैसे फुलफ़िल करी एंड कौन से ऐसे पॉइंट्स थे टफ़ टाइम जहाँ पे उनको एक अच्छे डिसीज़न की ज़रूरत थी और उन्होंने वो सही डिसीज़न चूज़ किया आगे बढ़ने में। तो हमारी जो बेसिक लर्निंग है स्कूलों में, आजकल स्कूल्स में बेसिकली ज़्यादातर नॉलेज बेस्ड है और बच्चों को बहुत कम चांस मिलते हैं एक्सपर्ट्स से इंटरेक्शन के लिए, ज़्यादातर टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन मिलते हैं। तो लीप ओडियम इंटरनेशनल स्कूल सीरीज़ जो है बेसिकली ये इस वजह से कंडक्ट होती है कि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, जैसे सर्वांगीण विकास। तो हम लोग एक टर्म सुनते हैं सर्वांगीण विकास बचपन से, तो सर्वांगीण विकास का मतलब नहीं समझ पाते कि क्या है। हम ये सोचते हैं कि सर्वांगीण विकास मतलब थोड़ी नॉलेज, थोड़ी अच्छी हैबिट, पर सर्वांगीण विकास इससे भी ज़्यादा होता है। सर्वांगीण विकास है कि जिसमें आप एक अपने जो प्रोफेशनल डिसीजंस हैं वो अच्छे से ले सकें, दूसरे पर्सन या कम्युनिटी को कोई हार्म ना करें, अपने एटीट्यूड्स अच्छे रखें, डिसिप्लिन रखें, किसी भी टफ सिचुएशन में कोई नेगेटिव चीज़ एडेप्ट ना करें, परेशानी में पड़ के सेल्फ हार्म ना करें, अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं। तो जो सर्वांगीण विकास होता है उसमें एक मजबूत बच्चा पैदा होता है। छोटे पर से हाई स्कूल इंटर तक जब वो जाता है तो धीरे धीरे उसके अंदर जो वो दिनचर्या में चीज़ें अडॉप्ट कर रहा होता है कि मैं हर दिन टाइम से आ रहा हूँ, मेरा टीचर हर दिन टाइम से आ रहे हैं, मैं हर दिन होमवर्क कर रहा हूँ, मैं अपना असाइनमेंट टाइम से पूरा कर रहा हूँ, उसके बाद मेरी हेल्थ भी साथ में बन रही है, नॉट ओनली द माइंड मसल्स, मेरी बॉडी की मसल्स भी बन रहे हैं अच्छे, ठीक है। और उसके साथ साथ मेरे लिए एक फ्यूचर में मेरे को दिखाई दे रहा है कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, जिसमें ये एक्सपर्ट्स जो लीप में आते हैं वो हेल्प करते हैं बेसिकली कि जब वो शेयर करते हैं अपने थॉट्स, अपना बैकग्राउंड, ये बच्चे अडैप्ट करते हैं, उन्हें सुनते हैं, ये देखते हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्यूरियस माइंड क्रिएट होता है, मतलब जागरूकता बच्चे के अंदर एक डेवलप होती है, क्यूरियोसिटी डेवलप होती है कि मैं भी क्या ऐसा कर सकता हूँ और अगर मुझे ऐसा करना है तो एक्सपर्ट की जो प्रोफेशनल जर्नी है वो कैसे मेरी प्रोफेशनल जर्नी से मैच कर सकती है, मेरे एक्सपर्ट ने कहाँ पर क्या चैलेंजेस लिए थे और क्या डिसीजन लिए थे वो मैं लर्न कर सकता हूँ। सो दिस इज हाउ वी द सर्वांगीण विकास, व्हेन वी से होलिस्टिक अप्रोच और सर्वांगीण विकास, इट हैज़ अ ह्यूज कंपोनेंट, बहुत सारे कंपोनेंट हैं इसमें जिसमें बच्चे को डेवलप किया जाता है अदर देन द नॉलेज और बुक्स। हम जो जानकारी इकट्ठा करते हैं किताबों से उससे बहुत हद तक अलग होती है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर से ऐसे इलाकों में जहाँ पर माइंडसेट जो है वो बुक्स और रिजल्ट तक लिमिटेड रहता है। जैसे आप आज मैं देख रहा था आपको कि आप 6, 7 और 8 क्लास के बच्चों को जो है मोटिवेट कर रहे थे, तो क्या लगता है पेरेंट्स को कहाँ से इसकी शुरुआत करनी चाहिए, कौन सी क्लास से, किस उम्र में? वो कहते हैं ना कि सही दिशा सही उम्र में मिल जाए तो कहीं ना कहीं अच्छे
लेवल तक बच्चा जा सकता है? मैं समझता हूँ कि एज लॉन्ग एज बच्चों की मैच्योरिटी क्लास के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, बच्चे की मैच्योरिटी बड़ी इंडिविजुअल और सब्जेक्टिव होती है। तो कोई बच्चा 6 क्लास में भी ऐसा होता है जो 8th क्लास की मैच्योरिटी रखता है। तो हमें एज ए पेरेंट्स ये देखना चाहिए कि हमारा बच्चा एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है, वो इंटरेस्ट कहाँ ले रहा है। और इंटरेस्ट नॉट ओनली कि वो किसी एक सब्जेक्ट में ले रहा है या वो किसी खेल में ले रहा है या वो इवन टीवी के वीडियो गेम में ले रहा है। आपको इंटरेस्ट जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा, मैं कहता हूँ आपकी कंप्लेन आ रही कि मेरा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता, वीडियो गेम खेलता रहता है, उसको पूछना है कि बेटा तुम प्रोग्रामिंग सीखोगे, तुम कार्टून देख क्यों रहे हो, तुम कार्टून बनाना क्यों नहीं सीखते। इसको बनाने से बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर्स आते हैं, ठीक है। जो लोग ये कार्टून बना रहे हैं दे आर अर्निंग, तो उनको बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं। तो उनको कुछ तो आइडिया देना है बच्चे को कि तुम अपना टाइम सही से इस्तेमाल करो, मैच्योरिटी लाओ और सही से इस्तेमाल करो, फील्ड चाहे कोई भी हो। तो डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं या हम सक्सेसफुल जिसको बोलते हैं या हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर आदमी जो है स्टेबल हो गया, तो स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ, जब स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी है जब आप फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली एंड विद फैमिली सब कुछ आपके पास हो, आपके कंट्रोल में हो। थोड़ा सा कम पैसा चलता है, लेकिन जिसके पास ये चीज़ें होती हैं, परिवार है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आता है, टफ टाइम में गलत चैलेंजेस नहीं लेता है, तो बच्चा की मैच्योरिटी जो है वो पेरेंट्स को चेक करनी चाहिए अपने, कि वो बच्चा जब हम उसको बोलते हैं कि तुमने अपना होमवर्क किया या नहीं किया, तो वो बच्चा एंग्री होता है, अपनी बुक फेंकता है, या वो हमसे कहता है यस आई डिड इट, मैंने कर लिया। उसका रिस्पॉन्स क्या है? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स की गलती क्या होती है कि वो बच्चे की प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते। मसलन वो ये पूछते हैं कि रिजल्ट में तुम नंबर कम लाए हो, अगली बार अच्छे नंबर लाना, तुम क्यों नहीं पढ़ते। पर पेरेंट्स को 1 या 2 घंटा बच्चे के साथ रोज़ बिताना चाहिए, एटलीस्ट 30 मिनट्स। आप उसकी किताबों के साथ बैठिए या फिर उसको बेड पे लेटते समय अपने पास रख के उसको कुछ अच्छी बातें बताइए अपनी लाइफ की, या जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके बारे में बात करिए। स्विच ऑफ द लाइट, आप बच्चे को लेके बैठिए, बच्चे को बात करिए। वो 30 मिनट का जो पेरेंट्स का सेशन है बच्चे के साथ, वो स्टिमुलेट करता है बच्चे के माइंड को सबसे ज़्यादा भविष्य में अच्छा करने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है, आपने सुना होगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किसान के बच्चे हैं और IAS कर लिए, तो हम हमेशा सरप्राइज होते हैं कि हमने तो अपने लाइफ में सारी फैसिलिटीज़ अपने बच्चों को दी, लेकिन वो ग्रुप C और D की भर्ती में भी नहीं जा पा रहा है, जबकि गांव से एक बच्चा IAS बन रहा है, एक MBBS बन रहा है, कुछ बन रहा है। फैक्ट ये है कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चे के अच्छे विकास के लिए पेरेंट्स का बहुत नॉलेजेबल होना, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना। जब आप ऐसे लोगों के घर में जाएंगे तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि उस घर में डिसिप्लिन है। वो सुबह 4 या 5 बजे पेरेंट्स खुद उठते हैं, बच्चे को उठाते हैं और उसका विकास इस तरीके से करते हैं कि बच्चे को डिसिप्लिन उसकी लाइफ का एक पार्ट बना देते हैं। जिस बच्चे में डिसिप्लिन आ गया, अनुशासन आ गया, उस बच्चे के लिए सब कुछ अचीव करना आसान होता है। तो पेरेंट्स को सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। खुद टीवी से अलग होना है, खुद मोबाइल से अलग होना है। बच्चे को जब सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं तो आप उसके सारे आवर्स को ये देखें कि अगर वो 12 आवर्स उनके सामने रह रहे हैं तो वो कहाँ टाइम को स्पेंड और कैसे कर रहे हैं। होलिस्टिकली उसको उस तरीके से एडजस्ट करें, ठीक, दैट इज़ हाउ। जी, आज जिस प्रकार से ODM इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे आपके सामने सवाल कर रहे थे, और उस सवाल में किस तरह की आपको मतलब उसमें मतलब लगा कि कॉन्फिडेंस कितना था बच्चों में, और यहाँ पर विजिट करके कैसा लगा, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट और यहाँ की जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पे किस प्रकार से आपने देखा कि भाई औरों से कैसे अलग है? वेल, देखो, हम एक बात कहते हैं, हमारे प्रोफेशन में एक चीज़ है कि वाई ऑक्सफोर्ड इज ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हमेशा हमारे मुंह पे आती हैं कि ये क्यों आती हैं। कैम्ब्रिज है, स्टैनफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड है, येल है। रीज़न वॉल नहीं है, दीवारें नहीं हैं, अच्छी बिल्डिंग नहीं है। होता क्या है कि वहाँ के टीचर कैसे, वहाँ के बच्चे कैसे, वहाँ जो टीचिंग में डिलीवरी है, जो पढ़ाया जा रहा है, वो क्या पढ़ाया जा रहा है, और क्या पढ़ाया जाने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो कैसे पढ़ाया जा रहा है। ODM इंटरनेशनल स्कूल्स की सबसे अच्छी बात जो लगती है, दैट इज़ CPX। दैट CPX इज ऑफ योर कैरेक्टर, पोटेंशियल एंड एक्सीलेंस। मीन्स
सर्वांगीण विकास जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है बच्चे का वो करना है। ठीक, तो एक चीज़ जो हमें थोड़ी सी डिफरेंट वाइब आती है ओडीएम इंटरनेशनल स्कूल महेंद्रगढ़ में कि इन्होंने एक होलिस्टिक अप्रोच को वेलकम किया। ज़्यादातर अप्रोच यहाँ बुकिस है, अब बुक से बाहर निकलने का टाइम है, क्योंकि जब हम कॉरपोरेट में जाते हैं तो दे डोंट वांट टू शेयर द नॉलेज ओनली, हमें वो बच्चे चाहिए जो डिसीजन ले सके। एक चीज़ कंपनी में ख़राब हो गई जिसकी वजह से कंपनी को करोड़ों अरबों का घाटा है, हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम उसको फाइनेंशियल बैकग्राउंड में कैसे ला सकते हैं कि दोबारा से वो वापस आ जाए। हमारे किसी प्रोडक्ट में कोई फ्लॉ आ जाता है, बच्चे के अंदर क्या वो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है कि उस प्रोडक्ट को फर्दर डेवलप कर ले, फर्दर सही कर दे। तो ये जो विकास होता है इसको कहते हैं कि 360 डिग्री विकास, जिसमें बच्चा हर चीज़ ऑप्ट करता है, और ये सारे स्कूल में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। जबकि जैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये बोलती है कि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सीपीएक्स जो आपका 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट है, इसको अगर मैच करेंगे तो इट इज़ फुल्ली इंटीग्रेटेड, ये बहुत आपस में मर्ज कर रहा है। एंड जब इसमें बच्चा धीरे धीरे कई स्टेप्स ऑफ 6, 7, 8 स्टैंडर्ड पे जाता है तो उसके अंदर एक चेंज आता है। जब आप उस बच्चे से बात करते हैं तो आप उस बच्चे में देखते हैं कि जो रिफ्लेक्शन, जो ऑरा जो आ रहा है वो समथिंग इज डिफरेंट, कुछ अलग है। वो स्टेज पे जाना और वो स्टेज पे लाइमलाइट होना, वो स्टेज को कैच करना, ऑडियंस को होल्ड करना, ये जब आप पब्लिक में भी जाते हैं तो आई गिव मैं गुड नंबर देता हूँ एक गांव के प्रधान को भी और जो मिनिस्टर्स हैं हमारे, बेसिकली इन सभी के अंदर आप एक स्ट्रांग चीज़ देखते हैं कि वो पब्लिक को कन्विंस करने की कैपेसिटी रखते हैं, जो बहुत सारे कम लोग देखते हैं। एक्चुअली एक प्रधान, एक मंत्री के अंदर थाउजेंड्स ऑफ पीपल को कन्विंस करने की क्षमता है, जबकि हम अपने घर में 5 लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते। ये 360 डिग्री होलिस्टिक अप्रोच जो होती है आपको सिखाती है कि हाउ टू इम्प्रेस द पीयर्स, अपने पीयर को कैसे इम्प्रेस करना है, अपनी पब्लिक के सामने कैसे हमें अच्छा व्यक्तित्व लाना है, जिसकी वजह से वो ये पूछें हमसे कि भाई किस स्कूल में आपने पढ़ाई करी है पर्टिकुलरली। बाकी यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ आकर के हमें बहुत अच्छा फील हुआ। पार्ट ऑफ द रीज़न कि जो बच्चे हैं उनको हमने देखा कि बहुत क्यूरियस थे, और मैं सरप्राइज हुआ कि 6th और 7th स्टैंडर्ड के बच्चों ने भी खड़े होकर के सवाल पूछे, जबकि रिसर्च इज़ सो फार फ्रॉम देम। मैंने रिसर्च को कंपोनेंट बनाया, रिसर्च उन बच्चों से अभी बहुत दूर है, लेकिन उस बच्चों की आप कैपेसिटी देखें कि उन्होंने वहाँ भी रिलेट करके मुझसे जो सवाल पूछे, स्पेशली कुछ सवाल ऐसे थे कि आपके चैलेंजेस रिसर्च में कहाँ थे, आपके चैलेंजेस प्रोफेशन में कहाँ थे, आपने क्यों डिसीजन लिया फॉरेन से अपने कंट्री में आने का, या क्यों इंस्पायर हुए आप फॉरेन से। ये एक मैच्योर थॉट माइंड ही पूछता है बेसिकली। तो मैं कहता हूँ कि बच्चों का विकास, सर्वांगीण विकास ही सही है। एंड दिस एजुकेशन जो 360 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ जो व्हाट इज कॉल्ड लीप, बेसिकली द इवेंट जो है वो शेप कर रहा है इन बच्चों को, फ्यूचर को, और प्रोग्रेस करने में आगे हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सर। वेलकम। देखिए, जिस प्रकार से ओडीएम इंटरनेशनल स्कूल महेंद्रगढ़ में लीप सीरीज़ का ये एक सेमिनार चल रहा था, और काफ़ी अच्छी बातें, मोटिवेशनल बातें बच्चों के साथ शेयर की, और काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लगातार हम उनके इंटरव्यू के माध्यम से आप लोगों तक ये जागरूकता, ये जानकारी पहुँचा रहे हैं। तो बाकी आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें और एक दूसरे से शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अपने बच्चे को ये चीज़ें बतानी ज़रूरी है कि किस प्रकार से बच्चे का सर्वांगीण विकास होना ज़रूरी है, किस प्रकार से बच्चा किस फील्ड में जाए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी से शुरुआत हो जाए, क्योंकि 5th और 6th, 7th, 8th से बच्चे में वो चीज़ें थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो आप उस चीज़ को आप फोकस ज़रूर करके चलें, और इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो हमारे इस चैनल पे आप लगातार देखें और एक दूसरे को बताएं, और आगे भी हम इस तरह की वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। तो आप बने रहिए एमजेन हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।